evening. This is your host Muskan, and I am very happy to be here. So, PCOS, as we all know, can hinder the reproductive system of a woman significantly. In a situation, if a woman has PCOS along with diabetes, it may affect their fertility or pregnancy even more, right? So today we have with us Dr. Shital Punjabi, who will explain us how a woman's reproductive health may be impacted if they have both diabetes and PCOS. So Dr. Shital Punjabi is an accomplished IVF specialist with extensive experience in gynecology. With more than 2.5 decades of experience in her field, Dr. Shital Punjabi is a founding director of Shashwat IVF Center and the IVF Department of Motherhood Women's Hospital. She is also a renowned consultant in cosmetic gynecology. I will just okay. Hello, How good evening. evening, good evening. So, we are going to start our topic today. Good evening. Yes, ma'am. Yes, thank you very much. Good evening. I really appreciate this uh, THIP media live session. This kind of the awareness session. They are going to create a huge awareness and the well evidence based scientific knowledge such that the people, like all the girls and the people and the women out there will be aware, and then they will not be mistreated, misdiagnosed. They'll get the right treatment, they'll get the right advantage of right scientific knowledge. I appreciate Think Media for this. So shall we start with the session? Yeah, absolutely. Thank you so much, ma'am. Okay, so the first question of the session will be, what are the specific challenges women with PCOS and diabetes face while trying to conceive? Okay, so well, let us first divide these two questions. Yeah. One is women with PCOS, and second, women with diabetes. Right. There are two sets of female. Those who are having PCOS, but they are not suffering from diabetes, and those who are having PCOS and they are suffering from diabetes. Right. So what, basically PCOS kya hai? PCOS is a genetically transferred disease, basically. There are some genetics responsible somewhere in the family, no doubt कि वो PCOS ही है, ऐसा नहीं, but there एक familial run diabetes होता है and उसका एक genetic responsible होता है, that when it is carried forward तो वो फिर PCOS के form में reflect होता है, right? तो the genotype is PCOS. ना उसका phenotype अलग अलग है, उसका presentation अलग अलग है. Young girls में once they start getting their first period, उसके बाद में लाइक पीसीओएस वाली जो यंग गर्ल्स होती है उनको वेट गेन शुरू होता है, इरेगुलर पीरियड्स होता है, थोड़े बहुत लाइक मूंछ के ऊपर या दाढ़ी के ऊपर थोड़े बहुत बाल आ सकते हैं, कई बार किसी किसी को मुंह पे एक्ने और पिंपल्स निकलते हैं. देयर आर मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स. तो दे आर हैविंग पीसीओडी बट दे हैव नॉट फुल फ्लेजेड पीसीओएस. So there is a difference between PCOD and PCOS. So one is that group of the girls, a young girl, and उसमें different sets of challenges are there. Now, if they miss that train, they don't get the diagnosis properly at that young age, they don't get the correction at that young age, they don't get the right lifestyle changes, right, in the food, in the nutrition, in the exercise, in their day-to-day life. If they don't get like those things at the right age, at the right time, then they develop full-fledged PCOS. That is like थोड़ा हाइपरटेंशन हो सकता है, खून मोटा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, थेरोस्क्लेरोसिस होता है, डायबिटीज हो जाता है, ओबेसिटी होती है, इरेगुलर ओव्यूलेशन होता है, प्रेगनेंसी ठहरने में तकलीफ होती है. तो दे आर सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल. सो फॉर द फर्स्ट द यंग गर्ल्स, इनको इरेगुलर पीरियड्स है तो उनको लाइफस्टाइल चेंजेस देते हैं. लाइक इनिशियल टाइम है तो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, डाइट में चेंजेस करते हैं,
लो कार्ब डाइट लेते हैं तो उनका सही हो जाता है एंड कंट्रोल में रहता है एंड देन इफ दे गो फॉर वेट लॉस तो देन दे गेट कम्प्लीटली क्योर्ड ऑफ द पीसीओएस एज वेल, राइट। तो वो एक ग्रुप है, उनके लिए चैलेंज क्या है कि इफ दे डोंट टेक द दिस lifestyle changes when required, if they don't take the medication, if they have insulin resistance and if they don't treat it, so then there is a very difficult situation wherein they get irregular periods, they do not ovulate, and most of the times pregnancy conceive ही नहीं कर सकते हैं। और फिर pregnancy conceive कर like very bad or severe PCOS, उनको फिर IVF करने की जरूरत पड़ती है। Even in IVF also फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट 3 months ऑफ द प्रेगनेंसी है उसके अंदर एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन 12th वीक ऑनवर्ड्स उनको थोड़ा हाइपरटेंशन और डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। 32 वीक्स के बाद में मदर को हाइपरटेंशन होना, उसको डायबिटीज होना, उसकी वजह से अर्ली डिलीवरी होना, या फिर जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जब आगे बढ़ता है तो एक्लेम्पिया तब आगे बढ़ सकते हैं तो वो होना। बच्चे के अंदर क्या होता है, आजू बाजू का पानी कम हो जाता है, उसको थोड़ा ब्लड कम मिलता है तो लो बर्थ वेट बेबी आ सकता है, प्री मैच्योर बेबी आ सकता है, फिर बच्चे को एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। तो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ द यंग गर्ल्स जिनको पीसीओएस है। दे आर नॉट लाइक नाइसली ट्रीटेड, दे आर दे गो अनडायग्नोस्ड, तो इनके लिए होता है। Now there are like girls who have already PCOS and they are already suffering from diabetes. Yes, तो they are relatively, उनको अगर हम देखते हैं तो they are middle aged women. Usually they are 30+ female. तो उनका फर्टिलिटी लो हो गया होता है बिकॉज ऑफ द पीसीओएस। उनको आईवीएफ की जरूरत ज्यादा पड़ती है। डायबिटीज की मेडिसिन जो शादी मेटफॉर्मिन जो मेडिसिन होती है उसके साथ साथ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका डायबिटीज बढ़ सकता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में उनको एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ती है बिकॉज वी वांट टू प्रिवेंट द मिस्ड अबॉर्शन, राइट। सेकेंड, एनामलीज थोड़ी ज्यादा होती है, लाइक जब डायबिटीज है तो बच्चे के अंदर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन होने के थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डायबिटीज बढ़ता है तो सिर्फ ओरल मेडिकेशन नहीं, उनको इंजेक्टेबल इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, बार बार उनका हम ग्लूकोज मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ती है। नाउअडेज वी कीप वो उसको मॉनिटर करने के लिए उनकी आर्म के ऊपर लगा के देते हैं सो दैट वी कैन मॉनिटर द शुगर नॉर्मली एंड वो रेगुलरली वो शुगर चेक करके रेगुलरली उनको इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ता है। और उनमें दोनों तरीके की कॉम्प्लिकेशन होती है, ब्लड कम मिलता है तो हाइपरटेंशन डायबिटीज के साथ में बच्चे को लो बर्थ वेट या कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी या कई बार बच्चे को इमीडिएटली डिलीवरी के बाद में नीकू जो बोलते हैं एनआईसीयू में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। कई बार वो डायबिटीज की वजह से लार्ज बेबी होता है तो लार्ज बेबी की वजह से भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं एंड वेरी हाई इंसिडेंस, वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ बच्चा जब भी मैच्योर हो जाता है 8 मंथ हो जाता है उसके बाद में सडनली वो शुगर फ्लक्चुएशन होता है जब डायबिटिक मदर का, तो बच्चे की इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है। मतलब अभी बच्चे का बिल्कुल सही है और कल उसको मदर को देखो तो बच्चा अंदर खत्म हो गया होता है एंड इट इज वेरी हाई इंसिडेंस। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, तो नॉट द मदर बट इन द बच्चा ऑल्सो एंड इन ऑल द 9 months, 3 trimesters वी कॉल इट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के चैलेंजेस अलग है, सेकंड के अलग है, थर्ड के अलग है। तो लेट को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है? तो जब भी उसका शुगर बढ़ गया होता है तो उसको वजाइनल डिस्चार्ज होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है, पाँव में एकदम सूजन आनी शुरू हो जाती है, कई बार वो शुगर फ्लक्चुएशन से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। घर पे उनको बीपी चेक करने के लिए बोलते हैं तो बीपी एकदम से बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि जिसके लिए उनको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना होता है। तो जो चैलेंज है वो ये है कि इट फॉल्स इनटू कैटेगरी ऑफ पहले इनफर्टिलिटी, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ द इनफर्टिलिटी विथ हाई एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है और उसमें जितना कैजुअली जितना अच्छे से प्रेगनेंसी को मैनेज कर सकते हैं उतना अच्छे से ये प्रेगनेंसी को मैनेज नहीं कर सकते हैं।
the compliance of the patient and the relatives of the patients are required. And regular जो नॉर्मल फॉलोअप होता है उससे फ्रीक्वेंट फॉलोअप करने की जरूरत पड़ती है. So these are the different challenges, and that's why this is very very important nowadays, because ये PCOS इतना बढ़ता जाता है genetically, plus lifestyle changes, the food changes, the sedentary life habits, lot of preservative wala food, lot of maida wala food, lot of bakery items, lot of stress, midnight में जाके पढ़ाई करना है या like career, these, that, and everything together, has increased the incidence of the PCOS like anything. Nowadays, we see every third girl has PCOS, right? And that's why this awareness is very, very important. And right time पे अगर management करते हैं, तो no worries. इसमें से कोई problem नहीं होती है. So that's how it is. Hope I have answered your question. Yeah, I hope that like you have covered so much in the question. It's like okay, so moving ahead is basically like you told that it might require an IVF whether the PCOS patient has diabetes or not, right? So how can an individual with PCOS and diabetes increase their chances of conceiving like naturally? Wow, that is very, very good question. And everybody would be interested in that, because अगर वो उनको मालूम है तो पहले से ही they can take the actions, right? So when somebody is aware कि मुझे PCOS है या obesity है या diabetes है, या फिर उनके irregular periods है, तो first and foremost is don't Google. Yeah. सबसे important चीज, right? Because Google पे we get a lot of information, and then we get a lot of stress because of that. So better to go to the right gynecologist first. Second, to get the complete diagnosis. डायग्नोसिस दो तरीके से होता है. एक होता है अल्ट्रासाउंड पिक्चर, एंड दूसरा होता है बायोकेमिकल मार्कर्स जो ब्लड रिपोर्ट्स करते हैं, राइट? वो करके देन डॉक्टर इंडिविजुअली इंडिविजुअलाइज प्रोटोकॉल होता है फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट. तो इट इज वन साइज फिट्स ऑल, राइट? तो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होती है. तो डॉक्टर के पास में जाके फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि पीसीओएम है और नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट्स है, या फिर पीसीओएम जो सोनोग्राफी से डायग्नोस होता है, साथ में ब्लड के रिपोर्ट्स में भी वो आ रहा है, तो बायोकेमिकल मार्कर्स भी आ रहे हैं, जिसमें 3 तरीके के मार्कर हैं. एक ऐसा है कि जिसमें थीन लिन पीसीओएस है और एलए चाहिए. एक ऐसे पेशेंट है जो ओबीस है और उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है. एक ऐसे ग्रुप ऑफ गर्ल्स है कि जिनको दोनों साथ में थोड़ा बहुत है और साथ में इरेगुलर पीरियड्स है और एंड्रोजन बढ़ गया है, तो उनको पिंपल और बाल फेस के ऊपर मेल पैटर्न बाल आना, और यहाँ से क्राउन ऑफ द हेड से मेल पैटर्न बाल्डनेस, वहां से बाल झड़ना, ये होता है. तो देन वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट एंड देन अकॉर्डिंगली डॉक्टर गिव्स अस द राइट एडवाइस. बट एक जनरल ब्लैंकेट एडवाइस बोलो तो अवेयरनेस फर्स्ट टाइम ही, गो टू डॉक्टर, डोंट गूगल, डोंट टेक स्ट्रेस, मुझे क्यों हाँ, नो नथिंग. एंड देर आर सर्टेन बेसिक थिंग्स डाइट में और लाइफस्टाइल में वो करना है. एक ये है कि डाइट में ग्लूटेन फ्री डाइट लो, जहां तक हो सके फ्रेशली कुक्ड होममेड फूड लो, बेकरी आइटम्स कम लो, या फिर अगर लेनी ही पड़ती है तो जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो. जब भी आप कुछ ऐसा खाना खाते हो जिसमें आपको लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही बेकरी आइटम ले लिए, तो सामने पीएच बैलेंस के लिए, माइक्रोबायोम बैलेंस के लिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लो. तो ये सारा हो गया फूड का. लो कार्ब डाइट लो, और जो फ्रीक्वेंट डाइट करते हैं उसकी बजाय try to take a high protein diet and a very long interval पे. And intermittent fasting helps a lot in this. तो वो करो. जिनको ओबेसिटी है उनको मिनिमम 20% वेट रिडक्शन करो. तो उसके लिए सही डाइटिशियन के पास में जाके पूरी डाइटरी चेंजेस करने हैं. साथ में न्यूट्रिशन में 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है. सन एक्सपोजर चाहिए तो विटामिन डी मिलता है. अगर सन एक्सपोजर नहीं है उतना तो विटामिन डी टैबलेट का सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए, सो दैट वो जो डिसफंक्शनल हार्मोन है वो सही हो जाते हैं. फॉलिक एसिड और B12 की सप्लीमेंट लेनी चाहिए. तो ये सब हो गया सप्लीमेंट्स की बातें. नाउ लाइफस्टाइल पे और क्या चेंजेस चाहिए, तो एक है सेडेंटरी लाइफ हैबिट नहीं चाहिए. तो मिनिमम 5 days a week 20 minutes to 40 minutes की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे अपने जो nowadays all of us wear the watch wearing you can see the pulse rate. तो अपना जो बेसिक पल्स रेट है उससे पल्स रेट अपना एटलीस्ट मिनिमम 20 तक बढ़े, ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए.
जैसे स्विमिंग कर लिया, स्किपिंग कर लिया, जॉगिंग कर लिया, और एनी अदर एक्सरसाइजेस फॉर दैट मैटर विच इंक्रीजेस आवर पल्स रेट बाय 20. अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं मेरे पल्स रेट नहीं चेक कर सकती हूँ, तो लाइक बेसिक पल्स रेट जैसे अपना है 75, तो वो 95 पहुंचता है तब तक के लिए एक्सरसाइज करके वो 95 को मेंटेन करो फॉर 20 minutes. So then that exercise actually sets the tone. It takes care of the insulin resistance in the body, right? तो ऑटोमेटिकली विदाउट टेकिंग मेडिकेशन वो पीसीओ कंट्रोल में रहता है. तो बाद में सारे हार्मोन सही होते हैं, तो ओव्यूलेशन भी होता है, इरेगुलर पीरियड सही होता है, ओबेसिटी नहीं होती है, और इमीडिएटली प्रेगनेंसी रह जाती है, राइट? सो दैट्स हाउ. बट देर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ द गर्ल्स की जिनका पीसीओ बहुत ज्यादा है, जिनका ओवरी का पिक्चर ऐसा है जिसको टिपिकल नेकलेस साइन ऑफ ओवरी बोलते हैं, पीसीओएस का किसिंग ओवरीज, जो अल्ट्रासोनोग्राफी में देखते हैं. अगर इनका बहुत ज्यादा है तो उनको आइदर बर्थ कंट्रोल पिल्स का कोर्स देते हैं हम लोग 2 या 3 महीने के लिए, तो थोड़े हार्मोन जो डिस्फंक्शनल है वो बैलेंस हो जाते हैं. एंड उसके बाद में ओव्यूलेशन इंडक्शन ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है, ओरल टैबलेट होती है, वो देने से ओव्यूलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है और उनको प्रेगनेंसी रहती है. किसी किसी को साथ में हम मेटफॉर्मिन करके जो इंसुलिन सेंसिटाइजर मेडिसिन है वो देते हैं, तो ओव्यूलेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी रहती है. बट इफ दिस न्यूट्रिशनल एंड डाइटरी चेंजेस प्लस एक्सरसाइजेज एंड द पल्स रेट जो मैंने बताया वो ये सब किया, साथ में ओव्यूलेशन मेडिसिन भी लिया, फिर भी जिनको सही नहीं होता है, लाइक प्रेगनेंसी नहीं होती, तो उनके लिए फिर इंजेक्टेबल गोनाडोट्रोपिन एंड समटाइम्स इंजेक्टेबल गोनाडोट्रोपिन के साथ में आईयू आईवीएफ के साथ में भी जो भी प्रेगनेंसी नहीं चाहता, तो फिर उनको आईवीएफ की जरूरत पड़ती है. तो दिस इज अ बिग चैलेंज, इट इज अ बिग हेल्थ इशू एज वेल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड एडवाइज एवरीबडी कि आप लाइक एटलीस्ट जब अर्ली एज है, जब भी 12 साल से 18 साल की उम्र में किसी को बहुत ज्यादा इरेगुलर पीरियड्स है और उसके बाद में ओबेसिटी होनी शुरू होती है, तो पहले ही लाइक गेट योरसेल्फ thoroughly examined by a right gynecologist, right ultrasonography, and right blood reports. So this is what I would advise. Yeah. So the of the entire question was that do not believe on any Google searches, right? And the first thing you have to do is just go to your gynecologist, make a diet plan, and then move ahead. So following to the answer of the question, there's one more question: how to know? Okay, so you mentioned that if you have PCOS much, right? So the question is how to know if I have too much PCOS. बेसिकली इट इज लाइक अगर हमको खुद को देखना है तो इतना ही है कि लाइक बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, या फिर इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल वेट लॉस नहीं हो रहा है. सो दैट इज वन थिंग वेरी वी हैव टू लाइक वो बत्ती होनी चाहिए कि अच्छा मेरा पीसीओएस बहुत ज्यादा है, राइट? दैट इज वन थिंग. सेकेंड, बहुत ज्यादा इरेगुलर पीरियड्स है. थर्ड, बहुत ज्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं. फोर्थ, अपने को यहाँ पे हेयर आ रहे हैं. फिफ्थ, जहां जहाँ पे क्रीजेस होती है वो जगह पे ब्लैक ब्लैक पेचेस पड़ रहे हैं. सिक्स, लाइक बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, बहुत ज्यादा बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर सजेस्टिव कि अंदर इंटरनली हार्मोन चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं. Yeah. तो उस इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेनी चाहिए ना. ये जब भी होता है तभी साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा होता है, क्योंकि उसको बढ़ने के लिए लॉन्ग टाइम चाहिए, इट्स अ क्रोनिक इलनेस. फिर दूसरा, वो टाइम में हाइपरटेंशन नहीं हो गया होता है. तो डरना नहीं है, डरते हैं तो स्ट्रेस आता है, तो ऊपर से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है. तो लाइक दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स अर्ली एज के अंदर व्हेन वी आर अवेयर कि अच्छा इसमें से कुछ है, तो लाइक लेट अस सीक द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाइट, एक्सरसाइज एंड वो एंटी एंड्रोजन ग्रुप की मेडिसिन, इंसुलिन सेंसिटाइजर मेडिसिन से सारा सही हो जाता है. और पीछे नहीं प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, नहीं अबॉर्शन होता है, नहीं प्रेगनेंसी इंड्यूस कॉम्प्लिकेशन होते हैं. सो अर्ली एज में ही लाइक बाय बिफोर द before planning the pregnancy, go and seek the advice of the doctor, and preferably between the age of 12 years to 20 years only. So Okay. that is a thing somebody can do. Yeah. Basically the symptoms remain the same, however the intensity changes, right? The intensity, you have more PCOS, right? Okay, perfect. Moving ahead, if a woman has PCOS and diabetes during pregnancy, what are the potential long-term implications for both her and the child? Oh, wow. So see, basically, for जैसे मैंने पहले बोला, like during pregnancy, बीपी होना,
पाँव में सूजन आना, ब्लड सर्कुलेशन कम होना, हाइपरटेंशन होना, और फिर बाद में इसको लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये सब है। एंड देन जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, तो ये सब है। डिलीवरी भी हो गई तो देर आर गुड चांसेस कि सिजेरियन करने की जरूरत पड़े। आइदर बच्चा प्रीमेच्योर होता है या ड्यूरिंग लाइक लेबर बच्चे को खून कम मिलता है और उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं हम लोग, तो वो होता है, तो उसके जो हार्ट बीट्स होते हैं उसमें डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, तो सिजेरियन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो होता है मदर के लिए वो टाइम में लाइक एक्लेम्शिया, मतलब कि बहुत ज्यादा अगर बीपी बढ़ गया, बहुत ज्यादा डायबिटीज हो गया, तो ब्रेन को लाइक रिलेटिवली खून कम मिलने की वजह से कई बार जो एक्लेम्शिया होता है, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, खींच आती है, अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, तो वो होने के चांसेस होते हैं। तो लाइक राइट डॉक्टर से रेगुलरली फ्रिक्वेंटली चेकअप करना जरूरी होता है। तो दैट इज दैट। तो दिस इज अबाउट मदर। डिलीवरी के इमीडिएटली बाद में जो पीपीएच बोलते हैं, जैसे बहुत ज्यादा लाइक ब्लीडिंग करना, यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और बहुत हैवी ब्लीडिंग होना, इट इज वेरी वेरी कॉमन। स्मिता पाटिल करके एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोइन थी, और उसको ये पीपीएच हुआ था। एंड यू वांट इमेजिन, विथ पीपीएच शी बीइंग इन बॉम्बे, लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट पीपीएच, राइट। तो ये चांसेस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, बट जो बाकी लोगों के हैं उससे पीसीओएस एंड डायबिटीज वाले को चांसेस ज्यादा है। तो हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवानी चाहिए, क्लियर। एंड सेकेंड, जब भी लाइक ऐसा कुछ है और सिजेरियन रिकमेंडेशन होता है तो सिजेरियन करवाना चाहिए। दिस इज सेकेंड थिंग। बच्चे में क्या होता है, अगर ये बहुत हैवी बीपी हो गया, डायबिटीज बहुत फ्लक्चुएट हो गया, तो इन दैट केस बच्चे का सडन इंट्रा यूट्राइन डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगेन लाइक फ्रीक्वेंटली विजिटिंग द डॉक्टर इज इंपॉर्टेंट। प्री मैच्योर डिलीवरी ज्यादा होती है, लो बर्थ वेट बच्चा ज्यादा होता है, बच्चे को आईसीयू में रखने की जरूरत ज्यादा पड़ सकती है। तो ये बच्चे की साइड में हुआ। एंड दूसरा, बच्चे का एक बार बच्चा डिलीवर हो जाता है तो बाद में उसको भी पीसीओएस होगा, नॉट नेसेसरी, उसको डायबिटीज होगा, नॉट नेसेसरी। सो नो वरीज, राइट। तो ऐसा नहीं कि उसको हो ही जाएगा। दिस इज अ मेजर क्वेश्चन एवरीबडी आस्क मी। ये बच्चे को होगा ही होगा ये बोलना मुमकिन नहीं है, वो तो उसके इन्वेस्टिगेशन से ही मालूम पड़ता है। बट जो मदर को पीसीओएस है और डायबिटीज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको फिर पीछे डायबिटीज रह जाता है और लाइफ टाइम के लिए डायबिटीज की ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है, ये चांसेस थोड़ा ज्यादा होता है। तो दिस इज फॉर द मदर, या। एंड वो मदर की जिनको पीसीओएस डायबिटीज और डिलीवरी हुई है, तो उनको मेनोपॉज की एज में हाइपरटेंशन डायबिटीज उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड जितने हार्ट अटैक के और ब्रेन अटैक जो स्ट्रोक बोलते हैं उसके चांसेस जितना मेल में होता है, उतना ही चांसेस फिर उनको 50 के बाद में वो फीमेल को भी हो जाता है। तो दिस इज इन अ वे वेरी बिग हेल्थ इश्यू and very public health issue as well. So most important is awareness. Second is early diagnosis. Third is early and right treatment. Fourth is taking preventive treatment even after the delivery also. And major lifestyle changes. And there is a definite role of yoga, meditation, and everything. Yeah, there is a definite role of all those things. And definitely, I would say, other than modern medical science medicines, certain naturopathy and Ayurvedic therapy also, they help a lot in controlling the progress of the disease. It's not that they can be used as as a लाइक कि मॉडर्न मेडिकल साइंस मेडिसिन नहीं लिया और उसके बदले ये लिए, ऐसे नहीं। इट हेल्प्स एज एन एडजुवेंट, तो को थेरापी करनी चाहिए विथ ऑल दिस थिंग्स। Like modern medication is very important, but as an added thing we can do that, right? It not be replaced by each other, should go together like that, yeah. What role do medications play in managing PCOS and diabetes during pregnancy? Very, very important role. As we have discussed, extremely important. We cannot replace medicines. Yeah. ये इसका भी पीसीओएस है एंड डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, दे कैन नॉट थिंक कि लाइफस्टाइल से या फूड से या एक्सरसाइज से या रेस्ट से उनका सही रहेगा। नो नो, दे हैव टू टेक मेडिकेशन।
They have to seek the help of the doctor frequently. They have to check their blood sugar regularly, their HbA1c regularly. They have to keep check on their sugar regularly. They have to maintain their insulin level regularly. So if they cannot maintain with oral medication, injectable insulin is also required, right? And they have to take. So there is a definite 100% role of medication during Yeah. pregnancy for these patients. Okay. So there was one question in the comment section that is, I have PCOS, but I am not taking any medications for it. Can my diabetes and medications affect it? Can my diabetes medicine affect it? See, this is something wherein we need to check all the reports. As I have already told you earlier, that for PCOS diagnosis, it is like, 0 से लेके 100 तक का सीवियरिटी हो सकता है. और उसका हमको मालूम कैसे पड़ता है? तो एक है उसका सोनोग्राफी पिक्चर फर्स्ट, एंड सेकेंड उसका हार्मोनल रिपोर्ट्स, एंड वो रिपोर्ट्स से मालूम पड़ता है कि अभी जो पीसीओएस की कौन सी स्टेज में है, उसने मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट किया हुआ है, इसने ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट किया हुआ है, हाइपरटेंशन डायबिटीज के साथ में उसका कितना अभी अभी कहाँ पे खड़े हैं. तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट इज डिसाइडेड. सो मेनी वीमेन आर देयर कि जिनको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं एंड कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है, बट दैट इज डिसाइडेड ओनली बाय दोज ब्लड रिपोर्ट्स, राइट. इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो कितना है, लाइक फास्टिंग शुगर कितनी है, फास्टिंग इंसुलिन कितना है, पोस्ट प्रांडियल दैट इज 2 hours आफ्टर फूड ब्लड शुगर कितनी है, एक्सक्यूज मी, एंड वो टाइम में इंसुलिन कितना है, HbA1c कितना है, ये सब उसके साथ में एंड्रोजन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है, उसके साथ में एफएसएच एलएच रेशियो कितना है, उसके साथ में एएमएच कितना है, साथ में थायराइड डिसऑर्डर है कि नहीं, तो थायराइड प्रोलैक्टिन रेशियो कितना है. ऑल दिस थिंग्स लाइक इट इज नॉट लाइक नो थंब रूल इन दिस. It is individualized. So like if you are having PCOS, so you should get all your blood reports. If you want our advice, you can send your blood reports. We'll review the blood reports. We'll check your BMI also, like, what is your height, what is your weight, what are your different measurements. Like, central obesity hai ki nahi, to central obesity mein kitna hai, what is the muscle mass, what is the fat ratio, what is the visceral fat ratio. All these things together we can check, and then we can come to conclusion that whether you need any treatment or not. Most of the times treatment is not required. It's just lifestyle changes and weight loss. Most important is weight loss, which helps. Only one exception to this is there are young girls who are thinly in PCOS. Like they are so thin and still they have very bad PCOS. That is the only exception. कि जिसमें weight loss will not give the result. That's the only exception of the girls of the PCOS. Otherwise, for every PCOS people, weight loss will always help in the treatment of the PCOS and in taking in taking preventive measures against PCOS. Okay, cool. I suppose, yes, we are done with questions. And this was a very, very insightful session. I'm sure all the audience got their answers. And yes, we do not have any more answers or questions in the comment section. Okay. Thank you so much, Dr. Shital. It was a lovely session, lovely session. I honestly, I was like, so I got, in fact, I even got all my answers. It was really, really helpful. Okay, so before ending the live session, I would just send my gratitude to the audience who joined the session and to you, Dr. Shital Punjabi. Thank you so much for joining with us and providing such insightful information. Okay, so at THIP Media, we are dedicated to delivering expert health advices. And as Dr. Shital Punjabi already mentioned, that please do not follow anything that you search on Google, which is not reliable, right? For more such health advices, you can go and check our Instagram page, our YouTube page, and you can follow and subscribe to the channels, right? Remember, when you know better, you live better. Thank you so much, Dr. Sheetal. Thank you. Bye. Bye. See you. See you.